Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today, we are going to study about the refraction, but it takes place in the prism. तो prism में किस तरीके का behavior show करती है light? क्या होता है after it enters into the prism and then comes out of the other surface? What happens then? And then we will be looking forward up to the spherical lenses, like the different types of spherical lenses and the terms related to those. We will be seeing some of the image formation. Alright, and that would be all in this lecture. So basically in this lecture we are going to study about the prism and the spherical lenses. Alright, so that is the main topic for today itself, and these topics are totally important for the school examination as well as the Olympiad. So either you are preparing for your school examination or you are preparing for the Olympiads like the NTSC, NSC, right? So that would be so cool if you study from these things. Alright, learn from these video lectures, that would be great. Alright, if you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. You can write the code TDB08 in the search box of the Telegram app. You can join the channel that appears for class 8. Alright, and that would be the thing by which you can get the DPPs and study material along with the notifications of the video classes. Alright, now see. This is a team which is going to help you a lot, because this team is actually working very hard so that we can provide you the quality lectures so that you can crack all your examination goals, and that is our goal, to help you in that. And that is the main thing. That's why we have prepared these lectures, and these lectures are free for everyone. So anybody can watch these video lectures, study from these video lectures and crack their respective examination goals. That would be a thing that what we have started for you all. But along with that, we have also provided you some you can say the packages, the full like the test series one. So to access those packages, you need to go on the website www.talkingtextbooks.in. When you go on that website, you will be getting like two type of packages, the full one and the test series. So basically full one includes all the necessary things you need to crack any examination. For example, you are going to get the study material, comprehensive study material, which is totally focused for the school examination and the Olympiad one, right? Then next you will be getting the video classes, the live lectures, video classes, you will be getting that. Third is the homework submission feature. You are going to submit the homework, alright. So basically you are going to do the homework first and then you are going to submit it, right? That is an initiation that you should do the homework. Next thing is the test series. That means you are going to get the bi-weekly quizzes along with the periodic test paper. So basically in that bi-weekly quizzes you are going to get like, you are going to study one chapter and then you are going to give a test, then again you study one lecture and then you give a test, right? That is the main thing. You are going to do like twice testing in 1 week. That is the main thing. And that is why we have kept it bi-weekly quizzes. Frequent testing will definitely get you a little bit of good intention of studies, right? So that is the main thing. And next you will be getting the periodic test papers. Periodic test papers will be like, they are little bit of rehearsal of the final examination. So basically you are going to get those questions and those type of questions which you are going to get in the final examination, the number of questions, the marking scheme, and all the things you need to know will be cleared by the periodic test paper. So basically these things which are included in the full package are totally the minimum things you need to crack any examination, and that is why we have encapsulated them in the full package. And the next thing is the test series. So basically you will be getting the periodic test papers, live classes and the bi-weekly quizzes. So these three things are included in the test series. If you are really interested in joining them, then you can use my code CYLIFE to get a 30% discount. And if you are seriously about like not into the buying thing, but if you want to know more about these packages, how they are going to help you and why you should even consider them, then you can use my code 91 not the code, that means you have to call on this number like 919549041111. If you use my code, then you will be getting a 30% discount, and if you call on this number, then you will be like all your queries will be resolved over there. So make sure that you call us and all your queries should be resolved. Alright, now let's take just a promise section. Okay, so promise yourself, you will be watching the whole lecture.
you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. That is a must thing to do because you need to revise on a daily basis. ठीक है, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे तो it will be so much better. Now you have holidays also, right? So basically you can do that. You can revise, right? All the necessary things in all the chapters we have studied till now. That would be so good, right? Let's get started for this lecture. So this lecture we are going to study refraction through prism and spherical lenses. And in the subtopics we are going to study refraction of light through prism, spherical lenses, types of spherical lenses and terms related to spherical lenses. ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे and then image formation by the spherical lenses along with those. ठीक है, that is the most amazing thing we need to know, right? चलो ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. ऑलराइट, सो देखिए आप लोगों ने प्रिज्म देखा होगा. प्रिज्म कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है. ठीक है, लाइक इट इज मेड अप ऑफ ग्लास का बना होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, वी कैन सी थ्रू दैट प्रिज्म, राइट. लेकिन ये प्रिज्म कुछ डिफरेंट शेप का होता है. कैसा होता है? इट हैज 2 ट्रायंगुलर फेसेस, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस एंड 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं प्रिज्म के. कैन यू सी दोज? कैन यू मेक अप दोज? देखो ये है एक ट्रायंगुलर फेस 1 और ठीक इसके पीछे बैक सरफेस वुड बी द ट्रायंगुलर 1 2. तो यू आर गोइंग टू गेट 2 ट्रायंगुलर फेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर. रेक्टेंगुलर कहाँ है? यहाँ है बच्चे. देखो एक इस तरफ, ठीक है, फिर एक इस तरफ एंड देन 1 बेस. ठीक है, तो बेस, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर द 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस. ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं ये एक्चुअली में क्या होते हैं? एंट्री पॉइंट होते हैं. दैट मीन्स ओनली फ्रॉम दीज रेक्टेंगुलर फेसेस लाइट गोज इनटू द प्रिज्म. ठीक है, तो इस प्रिज्म में एज यू कैन सी लाइट रेज गोइंग फ्रॉम दिस सरफेस. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? एक रेक्टेंगुलर सरफेस से लाइट रे एंटर करती है, देन इट इज लाइक बेंड towards the normal as glass is denser than the air, right? And then when it comes out again it moves away from the normal because air is rarer than the glass. All right, now we know, but how it behaves and what happens when light enter into this prism, let's see that. ठीक है, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं. All right then, okay, यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रहा है तो उसके अंदर आप क्या देख पा रहे हैं? आप ये देखने की कोशिश कर सकते हैं कि लाइट रे, वाइट कलर की लाइट रे जो है एक सरफेस पे, रेक्टेंगुलर सरफेस पे प्रिज्म के गिरती है, फॉल होती है एंड दैट इज गोज इनटू द प्रिज्म. प्रिज्म के अंदर जाती है. जब वो प्रिज्म के अंदर जाती है यू कैन सी लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट कलर्स, लिटिल बिट, नॉट दैट मच ऑफ डिस्टिंक्ट, but you can say a little bit mixing up, but you can make out that there are some colors, right? And then when it goes out through the prism, अब ये air में आ चुकी है, तो जब ये लाइट रे इस सरफेस से, इस प्रिज्म से, जब वो इस सरफेस से बाहर आती है तो ये और ज़्यादा डिस्टिंक्टिव कलर्स में चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, right? तो you can say here these colors actually are the colors inside the sunlight. So basically we can see that sunlight is one, you can say have white color, right? लेकिन इसी sunlight के अंदर 7 colors mix up होते हैं, alright? And यही 7 colors जो हैं वो इस prism के through we can test that out and we can watch that also. तो आपको ये 7 colors दिख रहे हैं, that is the functioning of this prism. Prism ने क्या किया है? Prism ने एक white light को उसके 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको यू कैन से उनको अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया. सो इट दिस टाइप ऑफ थिंग, दिस टाइप ऑफ फिनोमेना इज शोन बाय द प्रिज्म ओनली. ऑलराइट, सो नाउ यू कैन सी दैट फिगर शोज हाउ रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. पहले वाले में क्या होता है? पहले वाले में जब वो फर्स्ट सरफेस के अंदर लाइट एंटर करेगी तो क्या होगा? एयर से ग्लास में जाएगी. जब वो ग्लास में जाएगी तो क्या होगा? इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज ग्लास इज डेंसर दैन द एयर, राइट? एंड देन जब वो इस ग्लास प्रिज्म से बाहर जाएगी, सेकेंड रिफ्रैक्शन होगा, तो आपको क्या पता चलेगा कि अब वो एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो इट विल लाइक मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट? तो हेयर टू रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, राइट? तो यहाँ पर एक्चुअली एक प्रिज्म में रिफ्रैक्शन में 2 डिफ्रैक्शंस होते हैं. एक तब होता है जब लाइट एंटर करती है प्रिज्म में, एक रिफ्रैक्शन तब होता है जब लाइट बाहर जाती है प्रिज्म से. ऑलराइट,
नेक्स्ट आप देखेंगे द पर्टिकुलर शेप ऑफ द प्रिज्म कॉजेज द रे ऑफ लाइट टू बेंड, क्योंकि देखो ऐसा हमने ग्लास स्लैब में भी देखा, ग्लास स्लैब के अंदर लाइट एंटर करती है, थोड़ा सा पाथ चेंज करती है, बाहर निकल जाती है, बट कलर्स में कोई इफेक्ट नहीं होता, राइट तो मतलब ये रिफ्रैक्शन एक ग्लास में भी होता है, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन वाटर में भी होता है, बट चेंज वो जो 7 कलर्स का इसका जो सेपरेशन है वो सिर्फ प्रिज्म में ही होता है. And why in prism? Because of its shape, and this particular shape is going to give the 7 colors inside the sunlight. That is the most common thing you can see about prism. Prism के अंदर एक ही tendency होती है, because of its shape it has that tendency that it can distribute the 7 colors, like you can say it can separate the 7 colors from the sunlight, right? And I'll be telling you what this phenomena is called. Alright, now let's see. It first bends towards the normal at the air glass surface. What is the air glass surface here? यहाँ पे कौन सा है air glass surface? तो देखो यहाँ पर है air, ठीक है. Now this is glass. तो इस surface पे जब ये fall होती है, it is like going like this. तो जब ये fall होती है तो there is glass air interface. This interface is actually working as a glass air interface, ठीक है. Again यहाँ पे air है, ठीक है, तो you can definitely going to get that. अब यहाँ पे पहला जो रिफ्रैक्शन होना था वो कहाँ हुआ? एयर ग्लास के इंटरफेस पे हुआ, राइट. यहाँ पर पहला रिफ्रैक्शन हुआ. अब देख सकते हैं आप, when it leaves the prism, जब ये प्रिज्म को छोड़ देती है, when it goes out of the prism, it bends away from the normal. When sunlight, white light is allowed to pass through a prism, it splits into the 7 different colors. तो as you can see, जब ये ग्लास और एयर अगेन एक और रिफ्रैक्शन में जा रही है, एक और रिफ्रैक्शन कर रही है, तो ये ग्लास से एयर में जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, and while doing so, it is going to split into these 7 different colors inside the sunlight. Alright, you can note these points down. राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग. देखिए अभी हम बात करते हैं कि ये जो फिनोमेना होता है जिसकी वजह से, जैसे रिफ्रैक्शन एक फिनोमेना है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है. सो दिस चेंजिंग पाथ इज कैन बी टर्म्ड एज द रिफ्रैक्शन, राइट. बट द फिनोमेना जिसके अंदर लाइट अपने आप को 7 कलर्स में स्प्लिट कर लेती है, दैट फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्जन. Alright, so see, the phenomena of white light splitting up into its constituent colors is called dispersion. जब वो अपने ही बने हुए colors में अलग अलग बट जाती है, split हो जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? dispersion बोलेंगे, ठीक है. So this is the phenomena जिसके अंदर white light जो आ रही है वो 7 colors में distribute हो जाती है. That phenomena is known as dispersion. First thing. Next आप देख सकते हैं, a medium like glass shows dispersion but a medium like air does not. That is why white light in air does not appear colored. आप लोग बोल सकते हैं कि भाई अगर ग्लास में से जाने से वो डिस्पर्जन शो कर रही है, 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है, एयर में ऐसा नहीं होता, राइट. एयर के अंदर ऐसा नहीं होता. तो वी कैन से दैट कि एयर के अंदर ऐसा नहीं होता बिकॉज ऑफ इट्स, यू कैन से कलर्ड नहीं अपीयरेंस होने के. यू आर गोइंग टू गेट सी द येलो लाइट और यू कैन सी द वाइट लाइट इनसाइड द एयर, राइट. आपको एयर के अंदर एक तरीके से कोई कलर नजर नहीं आता लाइट का, राइट. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ग्लास एक डिफरेंट मीडियम है एंड एयर इज द डिफरेंट मीडियम एंड द पर्टिकुलर शेप इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, राइट. दैट इज वाई वी कैन नॉट सी द कलर्स इन द एयर. अब आप ये देख पा रहे हो कि जब ये एक तरीके से अपने पाथ से डेविएट होती है, मतलब जिस तरफ लाइट रे को जाना चाहिए था अब वो ऐसे हो गई है,
ठीक है, जा तो वो इस डायरेक्शन में रही थी, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द प्रिज्म अब वो चेंज हो गया, डेविएट हो गया, अपने पाथ से भटक गई है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 7 कलर्स हैं इसमें से सबसे कम डेविएट होने वाला कलर कौन है, रेड लाइट, एंड मोस्ट डेविएट होने वाला कलर कौन है, वॉयलेट, ठीक है। तो इसका मतलब वॉयलेट बहुत ज़्यादा डेविएट होता है अपने रास्ते से, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग अबाउट डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है, देखो डेविएशन का मतलब होता है ये है वाइट लाइट का रास्ता, मेन रास्ता, ठीक है। दिस इज दी यू कैन से द पाथ जिस पे वाइट लाइट जा रही थी, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो, ठीक है, ये प्रिज्म नहीं होता तो वाइट लाइट इसी रास्ते पे निकल जाती, राइट। तो दैट इज द इंसिडेंट डायरेक्शन, ऑलराइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डेविएशन है, ये जो डेविएशन है वो रेड कलर का सबसे कम है ना, एंड देन डेविएशन फिर ज्यादा हो गया ऑरेंज का, फिर हो गया येलो, फिर हो गया ग्रीन, देन ब्लू, बट सबसे ज्यादा जो डेविएशन है वो कौन सा कलर शो कर रहा है, वॉयलेट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डेविएशन वो कौन सा कलर शो कर रहा है, वॉयलेट शो कर रहा है, ठीक है। तो रेड लाइट सबसे कम डेविएट होता है, वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है, ऑलराइट। एंड एक और चीज मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ, वो ये कि whenever you obtain a bend of these color, do you know that this is the bend of 7 colors and this bend is known as the spectrum, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं ये जो यू कैन से बैंड है वो विबग्योर नाम से है, ठीक है, विबग्योर, जिसमें वॉयलेट सबसे नीचे आता है, यू कैन सी VIBGYOR, you are going to get the 7 colors, all right, and named as Vibgyor. You can remember these colors as Vibgyor, ठीक है। Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. You can remember those. It's so easy. All right. अब यहाँ पे आपको देखना होता है कि जितने भी डेविएशंस होते हैं कलर्स के बीच में, रेड और वायलेट को छोड़ के, वो बीच में कहीं पर भी जो है ऐसा डेविएशंस हो जाते हैं, ठीक है। बट सबसे ज़्यादा डेविएशंस वायलेट का होता है। डेविएशन मीन्स अपने ओरिजिनल पाथ से कितना ज़्यादा उनका डायरेक्शन चेंज हो गया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। एंगल एक्चुअली में हम उसे बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे कम डेविएट होने वाला कलर है रेड, सबसे ज़्यादा डेविएट होने वाला कलर है वॉयलेट। आप फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। ऑलराइट, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि वाई यू कैन नॉट सी, देखो ग्लास तो प्रिज्म भी है और ग्लास तो जो है हमने स्लैब पढ़ी थी वो भी है, वो भी ग्लास का बना है, प्रिज्म भी ग्लास का बना है, लेकिन फिर भी प्रिज्म में यू कैन सी द डिस्पर्जन, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स, राइट। लेकिन आपको जो है उसमें दिखाई नहीं देता। स्लैब में तो आपको व्हाइट लाइट एंटर करते हुए दिखती है, व्हाइट लाइट बाहर जाते हुए दिखती है, यू कैन नॉट सी द 7 कलर्स। Reason, I'll be telling you the reason of that, and the reason is in the glass slab too, the glass causes dispersion, वहाँ पर भी dispersion होता है, वहाँ पर भी white light 7 colors में distribute होती है, split होती है, ठीक है। But since the emergent rays of all the different colors are parallel to each other, they mix up again to give the white light, because हमें ये बात पता है कि सारी की सारी कलर जो हैं, जो भी लाइट रेज एंटर हो रही हैं एंड दे आर कमिंग आउट ऑफ दी ग्लास स्लैब, तो वो बिल्कुल पैरेलल होती है, ठीक है, वो पैरेलल होती है, तो सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी पैरेलल होते हैं। दैट इज वाई जब वो बाहर आते हैं सो दे गॉट मिक्स अप अगेन एंड दे मेक द वाइट कलर। तो यहाँ पर आपको जो है कलर का डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाता, आपको पता नहीं चल पाता है कि सारे कलर्स में कब डिस्ट्रीब्यूट हुए, कब मिक्सअप हुए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अलग अलग एंगल्स पे डेविएट होती है, इनका पाथ चेंज हो जाता है, दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू गेट द डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, राइट। प्रिज्म में ऐसा इसलिए होता है। नेक्स्ट थिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट वैक्यूम में जो डिस्पर्जन होता है वो नहीं हो पाता। Why so? Because all colors travel in vacuum with the same speed.
यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली में, प्रिज्म के अंदर से जाने पर मेन थिंग क्या हुई, वो यही हुई कि जब कभी भी प्रिज्म के अंदर से जाते हैं तो स्पीड ऑफ जो अलग अलग कलर्स है उनका स्पीड डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। बट इसी डिफरेंस की वजह से, सिर्फ इसी डिफरेंस की वजह से, बिकॉज ऑफ दी ग्लास स्लैब, अलग अलग कलर्स डिफरेंट उसमें वो करते हैं, स्पीड में ट्रैवल करते हैं, सो यू आर गोइंग टू गेट दी डिस्पर्शन, द स्प्लिटिंग ऑफ द कलर यू कैन से, जो कि स्लो होता है, जो कि फास्ट होता है, यू कैन से दैट, राइट। तो यू आर गोइंग टू गेट द डिफरेंट कलर्स, बट इन वैक्यूम सभी कलर्स का सेम स्पीड होता है, तो सभी साथ साथ जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा रेड पीछे रह गया, ग्रीन आगे रह गया, ऐसा नहीं होता है, राइट। दैट इज वाई यू कैन से कि डिस्पर्जन वहां पर भी नहीं होता है। ऑलराइट, अब मैं आपको बताती हूँ लेंस। लेंस क्या होता है एक्चुअली में, लेंस भी एक ग्लास का ही पीस होता है, बट मतलब वो भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का होता है, ग्लास का बना होता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसका शेप। उसका शेप कुछ इस तरीके का बनाया जाता है कि वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग शेप बना सके, उसका जो इमेजेस हैं वो अलग अलग साइजेस की इमेजेस दे सके बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड डेफिनेट सी बात है कि उसके शेप की वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यू कैन से ऑब्जेक्ट्स मिल पाते, नहीं इमेजेस मिल पाती हैं, ऑब्जेक्ट तो हम लोग दिखा करते हैं, राइट। सो बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की इमेजेस हैं वो आपको मिल पाती हैं जस्ट बिकॉज बेस्ड ऑन द shape of the lens and the distance of the object from the lens. Alright, so I'll be telling you how this is going to happen, but before, let's understand what this lens is. A lens is a piece of transparent refracting material bounded by two spherical surfaces or one spherical and other plane surfaces. So it can happen, या तो तुम्हें जो है एक पर्टिकुलर शेप दे रहे हैं कि भाई दो उसकी कर्व सरफेसेस हैं, स्फेरिकल सरफेसेस हैं, या फिर एक स्फेरिकल एक प्लेन सरफेसेस है। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस तो होना ही चाहिए। दैट इज द मेन कंडीशन हियर लेंस का। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट शेप्स के आपको लेंसेज मिलते हैं, ठीक है, बट ये एक रूल होता है दैट इट इज नॉट अ रूल बट इट इज लाइक अ यू कैन से अ थिंग विच शुड बी देयर कि भाई वहां पर हमेशा एक स्फेरिकल सरफेस तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर दोनों प्लेन सरफेसेस हो गए तब तो वो ग्लास स्लैब बन गया ना, फिर तो वो लेंस रहा ही नहीं, राइट। लेंस बनाने के लिए, ग्लास स्लैब को ही लेंस बनाने के लिए वन सरफेस शुड बी स्फेरिकल वन, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि भाई ये कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं। वैसे तो ये हर जगह होते हैं, बट माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, कैमरास, प्रोजेक्टर्स, ठीक है, उसके अलावा भी ना जाने कहाँ कहाँ लेंसेज यूज होते हैं, ऑलराइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैमरास में होता है, ये तो मुझे भी पता है, ठीक है। इवन हमारे वॉचिंग क्लासेस, हम लोग की जो वो होते हैं आई ग्लासेस होते हैं, राइट, उसमें भी तो लेंसेज होते हैं, है ना। तो वहाँ पर भी हम लोग लेंसेज का यूज़ करते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लेंसेज यूज होते हैं, ठीक है, टू ऑल्टर द इमेजेस, टू गेट डिफरेंट इमेजेस व्हाट आर आई नीड्स, राइट। इन इमेजेस को ऑब्टेन करने के लिए वी यूज different types of lenses. Now let me tell you the shape of different types of lenses. अब देखो यहाँ पर आते हैं, जब कभी तुम्हें इस तरीके का शेप मिले, लाइक मिडल में यू कैन से बहुत मोटा एंड एंड्स में यू कैन से बहुत पतला, एंड देयर इज अ शेप लाइक दिस, देयर आर टू स्फेरिकल सर्फेसेस हैं, दिस इज कॉल्ड द डबल कन्वेक्स लेंस। अब इस पे आओ, अब यहाँ पे एक प्लेन हो गई है सरफेस, एक कर्व हो गई है, दिस इज प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक शेप कर्व्ड है, अगला जो सरफेस है वो भी कर्व्ड है, सो दिस इज लाइक कनकेवो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। नेक्स्ट कम टू दिस इज अनदर टाइप ऑफ यू कैन से लेंसेज। सो दिस सी थिन पार्ट है बिल्कुल मिडल में, एंड लेट मी टेल यू, थिन पार्ट है मिडल में एंड थिक पार्ट है एजेस पे थिक पार्ट है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ शेप इज नोन एज द डबल कनकेव लेंस, ऑलराइट। अब यहाँ पे देखो एक सरफेस इज प्लेन, एक सरफेस कर्व, दिस इज प्लेनो कनकेव लेंस, एंड वन सरफेस इज कर्व,
other surface is also curved, so you are going to get what? You are going to get a convexo-concave lens. So you are going to get these types of lenses, but the most basic you can say basically जितने भी lenses होते हैं वो किस शेप के होते हैं? बेसिक अगर मैं बात करूं तो वो होता है ये डबल कन्वेक्स एंड डबल कनकेव. ओनली दीज टू आर द बेसिक यू कैन से द शेप ऑफ द लेंसेज. बाकी सारे हम डिजाइन कर सकते हैं, वी कैन यूज अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, बट द बेसिक टू लेंसेज आर double convex and double concave. All right, that's why we are going to study only these two. We are not going to study about these plano and concavo and convexo. ठीक है, चलो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ. फर्स्ट इज द कन्वेक्स लेंस. अब देखो कन्वेक्स लेंस में आप देख सकते हैं जो मिडिल पोर्शन होता है वो थिक होता है एंड एजेस होते हैं वो थिन होते हैं. दिस टाइप ऑफ लेंस इज द कन्वेक्स लेंस और बहुत ही मोस्ट कॉमन होता है ये. ठीक है, सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इट इज कन्वर्जिंग. ठीक है, इस लेंस का नाम कन्वर्जिंग लेंस होता है. तो अगर कहीं तुम कन्वेक्स लेंस नहीं सुन के नाम तुम कन्वर्जिंग लेंस भी सुनो तो भी तुम्हें समझ जाना है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेक्स लेंस. ठीक है, उसी तरीके से आप देख सकते हैं कनकेव लेंस. नाउ सी, यहाँ पे आप देखेंगे कि मिडिल पोर्शन बहुत ही थिन होता है एंड एज जो होते हैं वो बहुत ही थिक होते हैं. तो ये जो थिन और थिक पोर्शन होता है, दिस टाइप ऑफ शेप इज नोन एज द कनकेव लेंस. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं. व्हाई सो डाइवर्जिंग एंड व्हाई सो कन्वर्जिंग? वो इसलिए बिकॉज ये जो कन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है? लाइट रेज को एक जगह कन्वर्ज कर देता है. दैट इज व्हाई इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस. एंड जो हमारा कनकेव लेंस होता है वो ऐसा नहीं करता. वो क्या करता है? सारे लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, उनको फैला देता है. तो दैट इज व्हाई इट इज डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है, चलो अभी हम बात करते हैं डिफरेंट टर्म्स की जो कि आपको पता होने चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज को समझना दैट देयर आर वेरियस टर्म्स. जैसे हमने मिरर में टर्म्स पढ़े थे अलग अलग, दो टाइप के मिरर्स हैं, स्फेरिकल मिरर्स, उसमें टर्म्स उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ये सब चीज़ें लेंसेज में भी होती हैं. बट देयर आर टू, हर कोई टू होता है सिवाय प्रिंसिपल एक्सिस के. ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर टू. तो देखो यहाँ पे देखो, कैन यू सी दिस इज कन्वेक्स लेंस. ये बात पता है हमें, ये कन्वेक्स लेंस है. अब आप ये देख सकते हैं कि इट हैज टू स्फेरिकल सर्फेसेस. ठीक है, अब इसके दो स्फेरिकल सर्फेसेस हैं. दैट मीन्स ऐसे दो यू कैन से स्फेयर होंगे जिसका पार्ट ये सर्फेसेस होंगी. राइट, तो देखो इस सरफेस के लिए, लेट मी टेल यू दैट, इस सरफेस के लिए दिस इज द स्फेयर और इस सरफेस के लिए दिस इज द स्फेयर. जस्ट लाइक वी फॉर्म द स्फेयर इन द मिरर्स, राइट, स्फेरिकल मिरर्स. तो यहाँ पे आप देखो दो क्योंकि स्फेरिकल सरफेस होती हैं इसीलिए दो उसके स्फेयर्स भी होते हैं जिनकी बनी हुई, जिनका पार्ट ये सरफेसेस हैं. ठीक है, इमेजिनरी स्फेयर्स. अब आप देख सकते हो जब ये दो स्फेयर्स है, दोनों ही के केस में यू कैन सी कनकेव में भी यही होता है. कनकेव के लिए ये दो सरफेसेस हैं, इस सरफेस के लिए ये वाला स्फेयर होता है, इस सरफेस के लिए ये वाला स्फेयर होता है. सो देयर आर टू सरफेसेस एंड टू स्फेरिकल स्फेयर्स. राइट, सो यू आर गोइंग टू गेट टू स्फेयर्स. अब जब दो स्फेयर्स होंगे तो दो सेंटर भी होंगे. राइट, इसीलिए हर एक लेंस के पास दो दो सेंटर ऑफ सरफेस कर्वेचर्स होते हैं. ठीक है, दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और उनको नाम हमने क्या दिया? C1 C2. ठीक है, इसी तरीके से कनकेव लेंस के पास भी दो दो सेंटर होंगे क्योंकि दो दो स्फेयर होंगे. दो स्फेयर क्यों होंगे? क्योंकि दो दो स्फेरिकल सरफेसेस होंगी. तो नाउ यू कैन सी C1 एंड C2 द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर हियर. ठीक है, तो देखो सेंटर्स ऑफ द स्फेयर्स ऑफ विच द कर्व्ड सरफेस इज अ पार्ट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसको कैपिटल C से शो करते हैं क्योंकि हर एक लेंस के पास दो स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं, इसीलिए दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं जिनका नाम हम लोग C1 एंड C2 रखते हैं. ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. देखो इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसे हमने क्या बोल दिया? प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, सिंपल, बहुत इजी है ये. तो अब देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर, कैन यू सी दिस द मिडिल पोर्शन ऑफ द लेंस? ऑप्टिकल सेंटर, यू कैन सी दिस ऑप्टिकल सेंटर. आपको पता है अगर इस ऑप्टिकल सेंटर पे कोई लाइट रे फॉल होती है
तो वो बिल्कुल सीधे निकल जाती है बिना अपने पाथ को चेंज किए, बिना अपने पाथ से डेविएट हुए, इट गोज लाइक स्ट्रेट, ठीक है। दिस इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर, इसे हम कैपिटल ओ से शो करते हैं। फिर देखिए आप रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब क्योंकि दो दो स्फेयर हैं तो दो दो रेडियस भी तो होंगी, उनको ही हम क्या बोल देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो पहले वाले स्फेयर के लिए दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर C1NO, दूसरे वाले स्फेयर के लिए दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर C2O। इसी तरीके से यहाँ पर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड यहाँ पर भी। सो यू आर गोइंग टू गेट टू रेडियस ऑफ कर्वेचर्स व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द स्फेयर्स एंड द लेंसेज। ऑलराइट, उनको हमने R1 एंड R2 मेंशन किया है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ you can write these things, just a second, now you can write these things, all right, इन सबको लिख लो फटाफट। ऑलराइट, अब मैं आपको टू मोर ऐसे टर्म्स बताती हूँ जो आपको लेंस के बारे में पता होने चाहिए। एक तो फोकस, एक फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखो जो ये कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, तो ये देखो दिस इज अ कन्वेक्स लेंस, सारी की सारी जो पैरेलल लाइट रेज इस लेंस पर आती हैं, इस लेंस पे फॉल करती हैं, आफ्टर गोइंग थ्रू द लेंस they are going to get meet at a point, एक पॉइंट पे ये मीट कर जाती है, that is known as the focus, principal focus, ठीक है, of that lens। उसी तरीके से आप यहाँ देखिए, आप इस कनकेव में देखिए, कनकेव लेंस में देखिए, सारी की सारी लाइट रेज जो आ रही हैं वो आफ्टर गोइंग थ्रू, मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन, जब वो लेंसेज में से पार हो जाती हैं तो दे बिकम लाइक डाइवर्जिंग। कैसी हो जाती है, दूर दूर चले जाती है, वो डाइवर्ज हो जाती है एंड ऐसा लगता है कि वो यहाँ से आ रही हैं। सो दिस पॉइंट इज टेकन एज दी फोकल, ठीक है, इसको फोकस बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ये जो कनकेव लेंस है, इस कनकेव लेंस का जो फोकस है वो ऐसा होता है लाइक वर्चुअल, ऐसा लगता है कि वहाँ से सारी लाइट रेज आ रही हैं, बट कन्वेक्स लेंस के केस में दे आर गोइंग टू गेट मीट इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है, ऐसा होता है। इसे हम कैपिटल F से शो करते हैं, वैसे तो टू होते हैं F1 F2, ठीक है, तो हम उनको ऐसे शो करते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस में जो डिफरेंस डिस्टेंस होता है, दैट इज नोन एज द फोकल लेंथ अगेन, ठीक है। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ, ठीक है, इनको भी आप नोट कर लीजिए। ऑलराइट, अब मैं आपको बताती हूँ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, बट बिफोर दैट लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब देखिए कन्वेक्स लेंस का किस तरीके से हम लोग फोकल लेंथ मेजर कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी, अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास भी है ना, तो भी आप उससे पता कर सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ दैट मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। क्या करना है आपको, होल्ड अप करके रखना है सबसे पहली चीज़, ठीक है। सबसे पहले तो हमें कन्वेक्स लेंस लेना है, और या तो रीडिंग ग्लासेस ले सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, उसको भी ले सकते हैं, उसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फेस द लेंस टूवर्ड्स द सन, सन की तरफ उसको इस तरीके से फेस करना है, ठीक है, आपने ऐसा कर दिया। नेक्स्ट आप देखिए छोटा सा ब्लॉक ऑफ वुड लेना है, आप वुड का ब्लॉक ले सकते हैं, ठीक है, इतना उसको क्लोज रखना है लेंस के कि क्या हो, लेंस बीच में आ जाए सन और वुडन बोर्ड के, ठीक है, लेंस बीच में आ रहा है। एंड देन आपको क्या करना है, आपको इस लेंस को ब्लॉक से दूर लेके जाना है, धीरे धीरे दूर लेके जाना है। कब तक, जब तक आपको यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट नहीं नजर आ जाए, ठीक है,
कब तक करना है? एट वन स्टेज अ वेरी स्मॉल ब्राइट इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक के और आप ऊपर आपको छोटा सा चमकता हुआ ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा, दैट इज द इमेज ऑफ द सन। ठीक है, फिर क्या होगा, आपको उस वक्त जब आपको ब्राइट स्पॉट दिखाई दे उस वक्त आपको क्या करना है, लेंस और इस ब्लॉक के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर लेना, वही इसका फोकल लेंथ होगा। ठीक है, ये जो मेथड है जो हमने यूज किया है वो एक्चुअली कनकेव लेंसेज के लिए यूज नहीं हो सकता। तो अगर आप कनकेव लेंस का बिल्कुल इसी तरीके से जो है फोकल लेंथ मेजर करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। वाई सो? बिकॉज जो कनकेव लेंस होता है वो वर्चुअल इमेजेस बनाता है, दैट इज वाई। ठीक है, इसी वजह से ऐसा हम लोग नहीं कर पाएंगे, उसको हम स्क्रीन पे नहीं ले पाते ना वर्चुअल इमेजेस को, तो जैसे हमने वुडन बोर्ड के ऊपर स्क्रीन पे लिया है वैसे नहीं ले पाएंगे, दैट इज वाई। ठीक है, तो इसी वजह से हम जो है ऐसा नहीं ले पाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इमेज फॉर्मेशन हियर। तो ये देखिए, ये है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेज। अब मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर्स का हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन देखा था, राइट? कनकेव मिरर का भी देखा था, कन्वेक्स मिरर का भी देखा था। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये जो टेबल है, जो आप टेबल देख पा रहे हो, दिस इज लाइक द टेबल जो कि बिल्कुल सिमिलर है किसके? कनकेव मिरर के। दोनों सेम है, एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, बट द थिंग इज यू आर गोइंग टू गेट इमेज ऑन द अदर साइड। सेम साइड की जगह पे अब आपको दूसरे तरफ मिलेगी, बिकॉज लेंस में तो लाइट चले जाती है, राइट? जो मिरर्स होते हैं उसमें जरूर रिफ्लेक्ट हो जाती है, बट यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे इमेज का पोजीशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, होगा वही बट अपोजिट साइड में होगा। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग जो यहाँ पे हमें समझनी है, वरना सारे केसेस सिमिलर हैं। ठीक है, देखो कौन कौन पेयरिंग अप कर रहा है। जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कनकेव मिरर का टेबल सेम सेम होता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, कनकेव मिरर की, सॉरी कनकेव लेंस की, तो वो कन्वेक्स मिरर के जैसा होता है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, उनके टेबल बहुत सेम होते हैं, बट मिरर की इमेजेस जो होती हैं वो उसी सेम साइड बन सकती हैं, बट इन दैट इज नॉट इन द केस ऑफ द लेंसेज हियर, बिकॉज वहाँ पे रिफ्रैक्शन फॉर्म होता है। ठीक है, दिस इज वाई व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू एंड एक्सप्लेन यू। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज, सबसे पहले कहाँ रखा है हमने ऑब्जेक्ट को? इन्फिनिटी पे। जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, हम कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो सारी की सारी पैरेलल लाइट रेज जो इन्फिनिटी से आ रही हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट। दैट मीन्स इन्फिनिटी से आने वाली जो भी लाइट रेज थी वो इस फोकस पे मिल रही है, मतलब इमेज यहाँ हमें मिल रही है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें इमेज मिल रही है। सो इमेज इज एट फोकस F2 के ऊपर हमें इमेज मिल रही है। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी होने वाली है, पॉइंट साइज होने वाली है, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, अगर इस जगह पे आप एक पेपर रख दें, स्क्रीन रख दें, तो आपको वो इमेज उस पेपर पे या स्क्रीन पे दिखाई देगी। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन इज 2F1, बियॉन्ड 2F1। तो देखिए 2F1 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये जो 2F1 है इसके बियॉन्ड रखा है, इसके पीछे रखा। ठीक है, अब देखिए एक लाइट रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइट रे जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो एक लाइट रे जो पैरेलल जा रही है वो फोकस की तरफ से जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, आई एम गोइंग टू गेट द करेक्ट इमेज फॉर यू। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइट रे बिल्कुल पैरेलल जाएगी। ठीक है, जो वो पैरेलल से जा रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस की तरफ चले जाएगी, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट दिस लाइन विच इज गोइंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो कैन यू सी समथिंग कि जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड है। ठीक है, इन्वर्टेड है, छोटी है ऑब्जेक्ट से, और आप देख सकते हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है। ठीक है, यानी कि F2 और 2F2 के बीच में बन रही है। तो कैन यू सी दिस बिटवीन F2 एंड 2F2, डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी बट पॉइंट साइज नहीं होगी, वहीं पर रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, दिस इज द सेकेंड केस। अब देखते हैं हम क्या धीरे धीरे हम क्या करते हैं 2F1 पे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेकर आ जाते हैं। 2F1 पे जब ऑब्जेक्ट को लेकर आए तो इमेज भी 2F2 पे बनी, यानी अदर साइड तो बनी, बट इट इज व्हाट, लाइक इट इज इन्वर्टेड बट इट इज ऑफ सेम साइज। ठीक है, तो यू आर गोइंग टू गेट इमेज एट F2, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, फोर्थ केस जो है वो क्या बता रहा है, बिटवीन F1 एंड 2F1 हम और ऑब्जेक्ट को पास लेके गए, तो आप देख सकते हैं 2F1 और F1 इन दोनों के बीच में है ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बन रही है 2F2 के बियॉन्ड, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, है ना।
तो यहाँ पे तुम देख सकते हो तो बड़ी बन रही है, कितनी ज़्यादा बड़ी है वो, ए भी तो इतना सा है, ऑब्जेक्ट तो इतना सा है, इमेज इतनी बड़ी बन रही है, राइट। तो यू कैन सी हियर बियॉन्ड 2f2 बन रही है, एनलार्ज्ड बन रही है और रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। अब अगला केस आता है जब उसको f1 पे रख रहे हैं, तो भाई जब फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी और इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। तो एट इन्फिनिटी इमेज बन रही है, इन्फाइनाइटली लार्ज, हाईली एनलार्ज और रियल एंड इन्वर्टेड। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, वो केस कौन सा है, बिटवीन फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखी है, इमेज सेम साइड बन रही है, सेम साइड मतलब यहाँ पे वर्चुअल इमेज है, ठीक है। लेंसेज के केस में आपको वर्चुअल इमेज कब मिलेगी, जब वो सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट होगा, जहां ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ अगर इमेज बन जाए, दैट इज द वर्चुअल वन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वर्चुअल और आप देख सकते हैं बड़ी मिल रही है, सो एनलार्ज तो होगी बट वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, है ना। तो ऑन दी सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, एनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, दैट्स हाउ वी कैन गेट दी इमेज फॉर्मेशन बाय दी कन्वेक्स लेंसेज, ठीक है। आप इसको नोट कर लें। ऑलराइट, तो देखो अब आपको ये बात पता चल गया कि कन्वेक्स लेंस को यूज़ करके आप बड़ी इमेज भी बना सकते हैं, आप छोटी इमेज भी बना सकते हैं, राइट। ये चीज़ आपको पता चल गई, इमेजेस कैन बी स्मॉलर, कैन बी इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट एंड कैन बी लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। वहीं पर हम बात करते हैं किसकी, कनकेव लेंस की। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। कनकेव लेंसेज में सिर्फ 2 केसेस हैं, जस्ट लाइक सिमिलर टू दी कन्वेक्स मिरर, राइट, बिल्कुल सिमिलर होगा। एंड यहाँ पे आपको सिर्फ 2 पोजीशंस ऑब्जेक्ट की ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो कैन यू सी दिस कनकेव मिरर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सारे की सारी लाइट रेज कहाँ से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आ रही हैं, ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे रख दिया है, सारे की सारी लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन मतलब जब ये लाइट रेज मिरर इस लेंस में से बाहर जाएंगी, सो दे विल डाइवर्ज, ठीक है। वो इस तरीके से जाएंगी बाहर जैसे वो किसी पॉइंट से आ रही हो, एंड दैट पॉइंट इज व्हाट, द फोकस, ठीक है, दैट इज द फोकस। दैट मीन्स एक तो देखो, तुम देखो सेम साइड ऑफ दी वहां बन रही है ना, सेम साइड एज दी ऑब्जेक्ट, है ना, तो वो फोकस 1 पे बन रही है। इट इज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिकॉज सेम साइड एज दी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो सेकेंड केस, सेकेंड केस क्या कहता है, सेकेंड केस कहता है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। सेकेंड केस भाई तुम कहीं भी रखो, कहीं भी रख दो, दैट शुड बी ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दो, तुम्हें हमेशा कैसी इमेज मिलने वाली है, छोटी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। तो देखो तुम्हें कहाँ मिल रही है इमेज, यहाँ पे मिल रही है, छोटी सी इमेज मिल रही है, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख दो, यू आर गोइंग टू गेट इमेज समवेयर हियर। और यहाँ पे जो तुम्हें इमेज मिल रही है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मिल रही है, छोटी मिल रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल रही है, राइट। सो यू कैन से बिटवीन फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आप ये चीज देख पा रहे हैं कि आपको जो इमेजेस मिल रही हैं कनकेव लेंसेज से वो सब छोटी मिल रही हैं, देखो हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, बस छोटी मिल रही है, आपको सेम साइज भी नहीं मिलेगा, आपको बड़ा भी नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ छोटा मिलेगा। So if you are interested in making smaller images, then use the concave lens. And if you are interested in like making different sizes of the images, like the bigger, smaller, or the same size depending upon the distance of the object, then you can use the convex lens. ठीक है, तो आप you can definitely note this down. इसको फटाफट से नोट कर लेंगे आप फटाफट से, बिल्कुल। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज देखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट इमेज फॉर्मेशन देखा है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये वाले जो लेंसेज हैं ये किसी ह्यूमन आई के डिफेक्ट को हटा देते हैं, एक तरीके से डिफेक्ट को हेल्प करते हैं, ठीक है।
इस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं कि कोई डिफेक्ट जो है ऑलरेडी उसमें हेल्प हो सके, ठीक है। सो बेसिकली हमें ये बात पता है कि किसी की नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं, किसी की स्ट्रांग रहती हैं, तो किसी को पास का दिखना बंद हो जाता है, किसी को दूर का दिखना बंद हो जाता है, राइट। तो ये जो डिफेक्ट्स होते हैं एक ह्यूमन आई के अंदर, वो कैसे डिफेक्ट होते हैं, उनका नाम क्या होता है, और इन लेंसेज को यूज़ करके हम किस तरीके से उस डिफेक्ट को हटा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मेन रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स, उनको ठीक कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ टू केयर योर आईज, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस lecture. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.